اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کی پیشکش پیش قدم سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ہوں ہنا تاج اور میں نثار احمد، لے کر پیش قدم کا ایک اور شمارہ۔ ہمارے آج کے شمارے میں وادی میں ٹریفک نظام لگاتار برہم، ٹریفک لائٹ سے ملی تھوڑی سی راحت، بچوں پر انٹرنیٹ کے مضر اثرات، احتیاط برتنے کی فوری ضرورت، ایک چھاپڑی فروش کے حالات زندگی، سیگمنٹ ہوگا میری کہانی، تاریخ کے اوراق سے اس کے تحت سنیے 23 اگست کی تاریخی اہمیت۔ پروگرام میں آپ کے خطوط کے علاوہ ایک گیت بھی شامل ہے، اور آج کے قحط پنڈ میں جانیں گے کہ عید کے دن آپ نے کیا کچھ خاص کیا۔ وادی کا ٹریفک نظام بدستور ابتری اور بدحالی کا شکار ہے۔ شہر تو شہر، اب گاؤں دیہات کے ہر موڑ پر بھی گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں ٹریفک جام میں پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جیمنگ کی وجہ سے نہ صرف عام لوگوں کا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ بزرگوں اور بچوں کے ساتھ ساتھ مریضوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس طرح کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے حال ہی میں سری نگر میں ٹریفک لائٹس کو نصب کیا گیا۔ گو کہ اس اقدام سے لوگوں کو تھوڑی سی راحت تو ملی، لیکن اب تک ٹریفک نظام میں سدھار لانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ بہرحال ٹریفک لائٹس کے حوالے سے آئے سنتے ہیں سجاد بٹ کی یہ رپورٹ۔ وادی کشمیر میں تنگ سڑکوں اور ٹریفک نظام میں بد نظامی کی وجہ سے ٹریفک کی صورتحال ابتر بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے اور کافی سارے سڑک حادثات بھی پیش آتے ہیں۔ اس نظام میں بہتری لانے کے لیے اگرچہ کئی سارے اقدام کرنے کی گنجائش موجود ہے، تاہم ایک لمبے عرصے کے بعد سری نگر میں ٹریفک لائٹس نصب کرنے کا خواب حال ہی میں شرمندہ تعبیر ہوا، جس کے بعد ٹریفک کی صورتحال میں واضح بہتری آئی ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ٹریفک قوانین کو بالائے طاق رکھ کر ان ٹریفک سگنلز کا کوئی پاس و لحاظ نہ رکھتے ہوئے اپنی منمانی اور بےہودہ طریقے کی ڈرائیونگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سگنلوں کا مقصد ہی بے معنی نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کچھ ڈرائیوروں کے ساتھ ساتھ کئی عام لوگوں سے بات کی اور ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی۔ میرا نام محمد یاور ہے۔ جب سے ٹریفک سگنلز آئے یہاں، پہلے تو کشمیریوں کو کوئی لا نہیں پتا ہے کہ ٹریفک سگنل کیسے فالو کیا جاتا ہے۔ جب یلو لائٹ آتی ہے تو وہ پبلک کے لیے چلنے کے لیے، لیکن یہاں تب گاڑیاں چلنے لگتی ہے۔ اور رہی بات ٹریفک سگنلز، اس جگہ ٹریفک سگنلز رکھے ہیں جہاں جہاں حد سے زیادہ ٹریفک جام ہوتا ہے۔ پہلے تو اتنا ٹریفک جام نہیں ہوتا ہے جتنا اب۔ شبیر احمد بات میں ان ٹریفک سگنلز سے پہ فرق ٹریفک جام اس کی لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک لائٹ سے ٹائم بتانے کا سسٹم کئی جگہوں سے ختم کیا گیا ہے، جس وجہ سے کئی طرح کی دقتوں نے جنم لیا ہے۔ تھوڑا بہت فرق تو پڑا ہی پڑا اس سے، کیونکہ بہت سارے اوبے کر رہے ہیں ان رولوں کو سے بہت سارا، لیکن جو یہ ٹائمر سسٹم انہوں نے پھر سے کینسل کر دیا، اس سے تھوڑی بہت پرابلم ہو رہی ہے۔ عوامی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ ان جگہوں پر بھی ان لائٹس کو نصب کیا جائے جہاں ان کو ابھی تک لگایا نہیں گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوامی شعور بیدار ہونے کی امید ہے۔ یہ جو ٹریفک سگنلز یہاں پہ لگائے گئے ہیں سٹی میں کچھ جگہوں پہ، ابھی تو پوری طرح سے فالو نہیں ہو پا رہے، لیکن اس میں کچھ ٹائم لگے گا۔ ٹائم کے بعد شعور آئے گا لوگوں میں، خود بخود پھر فالو کرنے لگیں گے۔ اور ابھی ہر ایک جگہ پہ انسٹال نہیں ہوئے ہیں، کچھ ہی جگہوں پہ، تو اس سے بھی پرابلم ہو جاتی ہے ابھی لوگوں میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ افسوس کا مقام ہے کہ عام لوگ تو دور کی بات، اہم شخصیات ان لائٹس کی کھلے عام خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ٹریفک سگنلز کو بریک کیا جائے، زیادہ تر VIP یہ کرتے ہیں کہ ٹریفک جب روکا جاتا ہے تو وہ رکتے ہیں۔ پرسوں میں نے خود ایک انسیڈنٹ ایسا دیکھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ محکمہ ٹریفک کے ساتھ تعاون کریں، سگنلوں کے عین مطابق چلیں، تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلانے سے پرہیز کریں اور زیبرا کراسنگ کے مقصد کو سمجھیں، تاکہ ٹریفک حادثات پر قابو پایا جا سکے اور ٹریفک جام سے چھٹکارا پانے کی راہ ہموار ہو۔ کشمیری زبان میں اب بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، خاص طور سے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کشمیری بولنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔
गो के स्कूलों में कश्मीरी सब्जेक्ट को लाजमी तौर से शामिल किया जा चुका है, लेकिन तब तक सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आ सकती जब तक कि ना लोग इस जबान को सही मानों में अपनी मादरी जबान के तौर पर बोलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही, लेकिन गौर तलब है कि आखिर इस जबान के साथ लोगों का बर्ताव गैर संजीदा क्यों है। यही जानने की कोशिश की हमारे साथी इसाक भट्ट ने, जिन्होंने बात की मारूफ समाजी कारकुन और कलमकार ज़रीफ अहमद ज़रीफ से। मारूफ समाजी कारकुन ज़रीफ अहमद ज़रीफ छ वनान ज कशिर जबान गई विजि विजि सियासत शिकार। मफाद परस्तो त्रो गोडनिकिस वक्तस में साने माजी जेब पेट मनफी असर। सियासी सेटबैक यूजन विजि विजि अत सियासत गई ना, मतलब कशिरस हावी पर हुक्मरान हुंद अशि 4 हतो वरियो पेट रूद ना दबाव, लिहाजा तम चीजन गोडनिथि आव अशि फारसी जबान हुंद यूजन यलगार आव यत सरकारी सरपरस्ती हासिल गई। तथ मज आव मफाद परस्ती हुंद आलम, तथ मज बनो रोजगार तो बे बने तथ मज तिमन इंसानन इनाम इकराम। तमि लिहाज कोर तिमो तथ उरूज यमन जबान सरकारी पेठवली छ न रोजान जबान मज आलिम तमिक ज्यादा तिमै फायदे तुलनच दवदोरि मज पन ओरिजिनलिटी मुशरवित फायदन कुन लारेम। 1869 पे रोज उर्दू जबान ये सरकारी जबान तिक्याज उर्दू तनवानी खतन हिंद लोग समझित हेकान पत गो उर्दूस पे हिंदी हाइल क्या वजह ओस वलियो बोझो ज़रीफ अहमद ज़रीफ सिंह जेवे। तम पतन आयत उर्दू जबान ठोले यो जन 1869 पेठन बराबर 1846 1869 पेठन बराबर 1947 तान रोज उर्दू जबान सरकारी जबान हिंदिस हैसियतस मं। तमि वक्त कन हुक्मरानन ओस तमिक मतलब ये अस 3 खतन 3 रीजन यम जन कशीर हिंद जोम लद्दाख तो कशीर तिमन हसा बने रबितच जबान ये उर्दू। 1947 पे आव कशुर स्कूलन मज रईज करने। ये तम विज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सज कोशिश ज कशुर गस इल्मी जबान बन। पत 47 मज तकसीम गो अत मज गई फिरक परस्ती हाविल परस्तव जन यह उर्दू जबान मुसलमानन हिंद जबान, लिहाजा ठोस तिमो अत पे हिंदी पत यह आमुत मतलब जबान हिंद तरक्की मूजूब अत तासुब पत कन यह मुसलमान जबान मुसलमानों से आव अरबी आव जन मुसलमान तहजीब तमदन तो दीन आव अरबी मज पत हसा गो सह मुंतकिल फारसीस फारसी पत हसा आव सह ट्रांसलेट कर उर्दू पत हेक नशिरस मज सह यह तिमन हिंज काम 87 पत यमन जन जरूरत पत यह जन उर्दूस मज तशिरस मज अन जबान हुंद दामन वसी लगे उरूज जबान हुंद ग तरवीज तो तहरीक अम पतन दियो तिमो उरूज 87 पतन शेख सबन जमानस तान 54 तान कशीर मज यम सातन 87 पतन कशिर आई स्कूलन मज अन बाज़ाब्त आई कॉन्शियस एफर्ट शेख सबन है यह गस कशिर जबान कॉलेजन मज यह गस बन इल्मी जबान। तिम च मानान ज हरगाह आज त कशिर स्कूलन मज लेखनानु तो परनावनु छ यवान। वंगो अफसोस छ यम कथ हुंद ज गरन मज छन कशिर जबान यसल सान बोलने यवान। कौम छ यत कौमस शारदा पीठ ٲسۍ वनान, यत कौमस ज्ञान पीठ ٲسۍ वनान, यत कौमस मज सेकंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस छ लजमत तो इल्म अदबुक ये उरूज छ शारदा पीठ यत वनान ये संस्कृत यूनिवर्सिटी वेजबेरिस मज यह हर वक्त पोर्मुत लिखमुत तो बे जबानी हिंद लिहाज अदब के लिहाज इल्म के लिहाज सठा एडवांस बाकी खतव नश यम यत दक्षिण खोफर मगर अत बदकिस्मती यम पत 87 योकुन आय कलमकार दानिश्वर यमो कर जिम्मेदारी कबूल मिन हैसुल कौम जात अत मज शामिल तम मज नेर जात खातर फायदे तिमो कोर ती तो तम किन गई सन जबान कमजोर वो नव कोशिश कर इल्मी जबान बनाने वो बे आय 10वीं तान स्कूलन मज वातन मगर अत गफलत गरन मज यह बोलित हेकान युथ जन सोन बच्चे यह समझित हे मोन हेरिटेज क्या मोन वरासत क्या इल्म अदब तहजीब तमदन क्या तम यम हे सह समझित ये तहदन गरन मज बोल ये तथा कथ यहन वन दास्तान यहन वन वन हेक सोन साइंस जियोग्राफिया हिस्ट्री हेतन वो कशिरस मज इन तथ लगे ना वक्त मतलब कस गई तिम समझावन ये
मतलब लेट गो यह गोस लेट गन फिर भी एर गो वनकस अगर पायस पेन नतीजे हेकन सह गोल हासिल कर यमिच हकदार तो यह मरतब हेकन अत जबान पन्न दिवित। इल्मी इदारन मंज दारुल तर्जुम न आसनुक तिमन सठा मलाल जन यह पर्नुक मकाम सुबह गोस आशर पे पे बस वन बस गरस मज पान ये मौलवी यूसुफ मीरवैज मौलवी यूसुफ शाहन लिखमुत सह कुरान यम सात बह गरस मज तमिक वर्क ना पान साद मोज तन कत बोजान वन कुरान मजीद सह तिथन ओश त्रावान बह क्या वनो बदकिस्मती ये इल्मी इदार जन सन कल्चरल अकेडमी या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट रेडियो कश्मीर टेलीविजन तो खास कर कश्मीर यूनिवर्सिटी अत गोस दारुल तर्जमा आसन यथ मज ट्रांसलेशन यह कर सनिस कशिरस अत इल्म अदबस मज कोता मलुल सरमाय सह गोस फिरन यून अंग्रेजस मज सह गोस यून फिरन बेस जबान मज। जरूरत यम कथ हुकूमत इल्मी इदार तो आम लोग करन अमि जबान बापत पन पन जिम्मेदारी पूर युद्ध जन सन पेशान कशिर जबान रोजा महफूज। सहाफत के अमली मैदान से वाकिफ होने के लिए ये ज़रूरी है कि उन सहाफ़ियों की मेहनत तकदव के बारे में जानकारी हासिल हो जो सहाफ़त में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। ऐसा करने से सहाफ़त के तालिब इल्मों में दिलचस्पी को उभारा जा सकता है। इसलिए पेशकदम ने भी एक ऐसी ही कोशिश के तहत सहाफ़ियों से मुलाकात का एक सिलसिला शुरू किया है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत आज के शुमारे में हम अपने सामीन की मुलाकात कश्मीर रीडर के जुनैद राथर से करवा रहे हैं। इनसे बात करा रहे हैं पेश कदम के सजाद भट्ट। मेरे को बचपन से ही जर्नलिज्म का बहुत शौक था। लोगों के नाम अखबार पे देख देख के अपना नाम लिखने की बड़ी ख्वाहिश बचपन से ही थी। मैंने अपना 12th खत्म करने के बाद बैचलर्स मास कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई किया बारामूला कॉलेज से, तो लकीली मेरा एडमिशन वहाँ पे हो गया। अपने कोर्स के दौरान ही मैंने काम करना स्टार्ट किया। सो जब भी मेरा बैचलर्स खत्म हुआ तो फिर मैं भी इंटरेस्ट आ गया कि अखबार में काम करने का। तो सबसे पहले मैंने ऑनलाइन जर्नलिज्म, ऑनलाइन न्यू मीडिया में अपना ये किया। तो सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट न्यू मीडिया में बन गया। तो मैं यहाँ कश्मीर में एक न्यूज़ वेब पोर्टल जिसका नाम कश्मीर डिस्पैच है उसके साथ काम किया। उसके साथ मैं लगभग 1 साल तक वाबस्ता रहा, जो कि मैंने यहाँ पे लोकल बहुत सारे अखबारों के साथ काम किया। और प्रेजेंट में मैं अभी यहाँ पे एक लोकल अखबार कश्मीर रीडर जिसका नाम है उसके साथ काम कर रहा हूँ। मैं ये कश्मीर रीडर में एज ए रिपोर्टर काम करता हूँ और मेरा जो स्पेशल बीट है, स्पेसिफिक बीट, मैं बिजनेस बीट पे काम करता हूँ। और जब मैंने पहले स्टार्ट किया था विद लोकल न्यूज वेब पोर्टल तभी आई वाज डूइंग क्राइम। तो उसके बाद ही यहाँ पे मेरे को बिजनेस असाइन किया गया। तो मुझे काफी ऑफर्स भी आए नेशनल पेपर से, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जिनकी वजह से मैं नहीं जा पाया। तो इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में ऐसा चांस फिर से मिला तो डेफिनेटली आई विल जस्ट गो फॉर इट। हमारे कश्मीर में क्या ट्रेंड है, यहाँ पे बिजनेस का बड़ा काफी गलत इंप्रेशन है। यहाँ पे लोगों ने इतना कॉन्फ्लिक्ट देखा है कि दे कांट गो बियॉन्ड कॉन्फ्लिक्ट, वो दे कांट थिंक बियॉन्ड कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली। तो मेरा भी ऐसा ही पहले रुझान था, बट slowly I came to know there's so many things happening in business, different things। ये बिजनेस का काफी ब्रॉड फील्ड है यहाँ पे। यहाँ पे लोग ज्यादातर दे जस्ट प्रेफर कॉन्फ्लिक्ट और लाइक समथिंग एंड, और अगर वो बिजनेस किसी भी तरीके से मतलब कर भी लेते तो दे कांट थिंक बियॉन्ड टूरिज्म। यहाँ वादी में ज्यादातर जो स्ट्रेस हमारा दिया जाता है दैट इज ऑन, ज्यादातर जो यहाँ पे स्कोप दिया जाता है पॉलिटिक्स वगैरह को। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे देयर शुड बी एक अलग स्कूल होना चाहिए बिजनेस जर्नलिज्म जहाँ पे सिखाया जाए। यूनिवर्सिटीज में एक अलग ही ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बिजनेस, और हमारे यहाँ पे जो अखबारों का भी काफी रोल बनता है। ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उनकी मतलब उनको सपोर्ट देना, उनकी स्टोरीज करना सो दैट कि वो प्रमोट करे और उनका बिजनेस शाइन हो जाए। नेटसिटी एडवर्टाइजिंग, जहां पर एयर टिकट और रेलवे टिकट की बुकिंग के साथ साथ एडमिशन कंसल्टेंट की सहूलियात दस्तयाब हैं। याद रखिए नेटसिटी एडवर्टाइजिंग, नजदीक मंतकी मेमोरियल स्कूल, अवंतीपोरा। इंटरनेट दौरे हाजिर की एक अहम इजाद है जिसकी बदौलत दुनिया
ایک ग्लोबल विलेज बन गई है। इंटरनेट की एक क्लिक पर दूर एक इंसान दुनिया के किसी भी कोने से किसी दूसरे कोने में रह रहे इंसान के साथ आसानी से राब्ते में रह सकता है। लेकिन अगर इसी इंटरनेट का सही इस्तेमाल के बजाय गलत इस्तेमाल किया जाए तो समझ लेना चाहिए कि लेने के देने पड़ेंगे। बच्चों को लेकर हमें कुछ ज़्यादा ही एहतियात करना होगा, क्योंकि बच्चों पर इंटरनेट के ज़्यादा मुज़िर असरात पड़ सकते हैं। इस उन्वान पर मज़ीद बात कर रहे हैं अजहर बशीर। ज़माने कदीम से ही तरसील का अमल चला आ रहा है, जो हर दौर में तरक्की के ज़ीने तय करता रहा है। आज तरसील का अमल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत बनकर उभर रहा है। अरबी का मकौला है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। चनाच 20वीं सदी के वस्त में कंप्यूटर की ईजाद ने रवायती तरसील को तरक्की देकर इलेक्ट्रॉनिक तरसील में तब्दील कर दिया। नए मिलेनियम में इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चों की भी दस्तरस में आ गया है। कंप्यूटर तो अल्लादीन का चिराग की तरह है, जिसे मिल जाए वो इसका आका हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि इसका आका बच्चा है, जवान है या बूढ़ा। इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की मिसाल ऐसी ही है जैसे एक छुरी है, जिसे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ग़िज़ाई अशिया को काटा जाए, लेकिन इस छुरी से किसी का कत्ल भी किया जा सकता है। और बच्चों के हाथ लग जाए तो वो अपना हाथ भी काट सकते हैं। अलगर्ज इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से बच्चों की ना सिर्फ इखलाकी कदरें घट जाती हैं, बल्कि इनकी ज़हनी सलाहियत और जिस्मानी ताकत पर कारी ज़रब लग सकती है। इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चों के लिए खालिसतन तालीमी और उनके मुस्तकबिल के लिए तामीरी किरदार अदा करने की गर्ज से हो। इंटरनेट का इस्तेमाल साइबर कैफे पर और भी ज्यादा मुज़िर होता है। ये इदारे इखलाकी जिम्मेदारी से ज्यादा मुनाफे बख्श तिजारत के लिए कोशां रहते हैं। चनाचे जो भी गाहक उनके यहाँ आता है वो इनके लिए गाहक है। उम्र की इसमें कोई हद नहीं। चनाचे अगर बच्चे यहाँ इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए आते हैं तो कैफे के मालिक बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं करते। साइबर कैफे में अरबाब मजाज की तरफ से बच्चों को ये हिदायत हों, नेज़ मालिकिन इंटरनेट कैफे को इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान इसकी छानबीन करते रहें कि आया बच्चे कोई गलत साइट या मवाद हासिल तो नहीं कर रहे हैं। आजकल पुलिस कमिश्नर की हिदायत है कि कैबिन को दरवाजा न लगाया जाए और इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों को प्राइवेसी मुहैया न की जाए। दुनिया में अमीर लोग भी रहते हैं और गरीब भी। जहां अमीर लोगों के पास बेशुमार धन दौलत और ऐश व आराम की जिंदगी होती है, वहीं दूसरी तरफ गरीबों को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके वो बच्चों को तालीम दे सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम एक छापड़ी फरोश की ज़िंदगी के हालात के बारे में सुनेंगे कि किस तरह से वो 10 रुपए कमाने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। मोहम्मद यूसुफ से कर रहे हैं बात वसीम अब्दुल्ला, और यही है आज की मेरी कहानी। मेरा नाम यूसुफ। कौन कर छावड़ फरोश छावड़ फरोश छावड़ फरोश कन मुख्तलिफ सामान कन मुख्तलिफ सीजनन मज वनकस चलान माह श्याम कर खजर कर बाकी सब्जी कर यम चीज कर मुख्तलिफ यम सीजन तमे हिसाब कलकन कन। फॉर एग्जाम्पल तुम वुचान ये पब्लिक रश अवे ये कन हुकूमत पब्लिक रश टुकन पकान ज्यादा पहम।
ات مز اصل آمدنی بنان کامہ دہ بنان روپیس 300 بنان دہس تو ام کن فائدہ مجھے بنان ہاتھ تیت موسم ام حساب تہ پرمنٹ دکان نا پرمنٹ یہ کتھ پرمنٹ یہ ریٹ ات مز پولیس پہ بگاوان اتس تو نوان بیس جائیں مز بندی کران دہس پہ تہ پرابلم گھان تو یہ دہس پہ مکمل آسان تھر مز کہ کر یہ پولیس تو وسان تمہ سات تھوٚد اہن مے بچہ تم پڑھان مگر تمن دم بات ست کرنا کی وقت ین وول چھابڑ فروشس پہ ہیٚکہِ زندگی گزارت کی انسانس تہند خاطر کیا خواب تھوس تمن پڑھائی دان سکولس اصل سوزان اور کران محنت پہ خواب کہ تم گھن اصل کاروبار کران برونٹ کن اگر نہ ملازمت تمن اصل بن تیل تہ گھن تم اصل کاروبار کر یہ سون خواب آخرس پہ یہ بچہ اصل پہ اس وقت آپ سن رہے ہیں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کی پیشکش پروگرام پیش قدم دنیا کے حالات و واقعات سے تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے ہیں. کچھ واقعات سے ذہن پر خوشی کے اثرات پڑتے ہیں اور کچھ تلخ یادوں سے انسان کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے. اب بتائیے کہ آج کون سی تاریخ ہے اور کیا آج کے دن کی بھی کوئی تاریخی اہمیت ہے؟ آج 23 اگست ہے اور ہر دن کی طرح آج کے دن کی بھی اپنی تاریخی اہمیت ہے. آج کے دن بھی کئی سارے واقعات رونما ہوئے ہیں. مزید جانکاری دیں گے عمر مشتاق. 1914 میں آج کے دن جاپان نے پہلے عالمگیر جنگ میں جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. آج کے دن 1929 میں عرب نے یہودیوں پہ حملہ کیا. 1938 میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 7 وکٹوں کے نقصان پر 903 رن کا ہدف رکھا. ہڈسن نے 364 رنز کی اننگ کھیلی. 1987 میں بنگلہ دیش میں شدید بارش گرنے کی وجہ سے 1000 سے زیادہ افراد کی موت رونما ہوئی. 2011 میں منڈل ورجینیا کے نزدیک 5.8 شدت کا ایک زلزلہ آیا جس کی وجہ سے ایک نیوکلیئر ری ایکٹر بند ہو گیا. آج کے دن UN کے ہیومن رائٹس کونسل نے سیریا کی سرکار کی انسانی حقوق کی پامالیوں کی پیدائش میں تحقیقات صادر کی. 1966 میں آج کے دن لونر آربیٹر فرسٹ نے چاند سے زمین کی طرف تصویر لی. 1960 میں دنیا کا سب سے بڑا مینڈک 3 کلو گرام کا پکڑا گیا. آج کے دن پہلا وائرلیس پیغام امریکہ میں جہاز سے ساحل پر موصول ہوا. کہتے ہیں کہ انسان جب بہت زیادہ تھک گیا ہو تو اپنے ذہن اور جسم کو راحت دینے کے لیے کئی سارے ٹونکس کا استعمال کرتا ہے یا پھر چند گھنٹے کی نیند کا سہارا لیتا ہے. لیکن موسیقی بھی ایک اچھا ذریعہ ہے ذہن کو فوری آرام پہنچانے کے لیے. باغن بہار آوے یکنا بحال باوے ملہاوے سین کے داغ. باغن بہار آوے یکنا بحال باوے ملہاوے سین کے داغ.
लजबाल जम पामन दिम चाक मखमल जामन हो दामान रुट में चोनी द्रवित कबील क्रोनी द्रवित कबील क्रोनी इखना बहाल बावई वल्हावई सीन किदा बागन बहार आवई इखना बहाल बावई वल्हावई सीन किदा बागन बहार आवई इखना बहाल बावई वल्हावई सीन किदा बागन बहार आवई इखना बहाल बावई वल्हावई सीन किदा लजबाल जम पामन दिम चाक मखमल जामन हो रोयहाव तम जाना नहीं छसदार तल प्यारा नहीं छसदार तल प्यारा नहीं इखना बहाल बावई वल्हावई सीन किदा बागन बहार आवई इखना बहाल बावई वल्हावई सीन किदा बागन बहार आवई इखना बहाल बावई वल्हावई सीन किदा लजबाल जम पामन दिम चाक मखमल जामन हो बागन बहार आवई इखना बहाल बावई वल्हावई सीन किदा लजबाल जम पामन दिम चाक मखमल जामन हो बागन बहार आवई इखना बहाल बावई वल्हावई सीन किदा दामान रुट में चोनी द्रवित कबील क्रोनी हो बागन बहार आवई इखना बहाल बावई वल्हावई सीन किदा बागन बहार आवई इखना बहाल बावई वल्हावई सीन किदा वल्हावई सीन किदा वल्हावई सीन किदा। पेश कदम में हिस्सा लेने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है peshkadam@gmail.com peshkadam@gmail.com। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है इंचार्ज प्रोग्राम पेश कदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपुरा, पुलवामा। करीमाबाद पुलवामा से हमें एक खत मिला है नजीर अहमद मीर का। आपने प्रोग्राम की सराहना की है और लिखा है कि प्रोग्राम के अलग अलग सेगमेंट्स अपना मुनफरिद जायका रखते हैं। हम आपका प्रोग्राम हर हफ्ते सुनते हैं। नज़ीर BSc फाइनल ईयर के तालिब इल्म है और पेश कदम में हिस्सा लेना चाहते हैं। नज़ीर साहब, हमने अपने दरवाजे हर किसी के लिए खुले रखे हैं। हमें आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनाने में बेहद खुशी होगी। सोमवार से जुम्मा के रोज सुबह 9 बजे से 5 बजे तक किसी भी वक्त आप यूनिवर्सिटी तशरीफ लाए और आप जिस टॉपिक, जिस उन्वान पर प्रोग्राम में बात करना चाहते हैं उसका स्क्रिप्ट भी अपने साथ लाए। हम आपको जरूर मौका देंगे। करीब करीब हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होने को है, लेकिन इजाजत लेने से पहले अपने सामीन को आज का कथ पिंड सेगमेंट सुनवाना नहीं भूलेंगे। आज के कथपेंड में हमने आपसे पूछा कि ईद के दिन आपने खास क्या किया, तो ये है आज का कथपेंड सेगमेंट। उबैद किरमानी। ईद पे जामिया मस्जिद में पहले नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद दोस्तों के साथ गए, घूमे फिरे। है बस कुछ खास नहीं, घर में दिन में बैठी रही। हमें नमाज पढ़ी, ईदी ली, रिलेशंस में गए। जी मेरा नाम उमर हाफिज है। मेरी पॉकेट मनी आई या ईदी मिली मुझे, मैंने वो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करी। मेरा नाम आदिल है। ईद नए कपड़े लगा के अतर वतर लगाई कपड़ों पे और ईदगाह में नमाज अदा की। मेरा नाम बासित रहमान है। इस ईद पे खास ये किया कि दोस्तों के साथ घूमे और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया। मेरा नाम हाशिम है। हम बस घूमे यहाँ वहाँ। इसके साथ ही पेश कदम का आज का शुमारा खत्म होता है। हिना ताज और पेश कदम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश पेश कदम।